Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe. So today we are going to read our second chapter, that is adaptation in plants. You will learn about plants on lands, aquatic plants, other plant and use of grass plants. मतलब जो प्लांट्स ज़मीन पे रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, और कुछ अलग से प्लांट्स और ग्रास प्लांट होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Plants grow all over the world. There are big plants and small plants. Scientists have discovered well over the 380,000 different types of plants. Plants live and grow in many different conditions. Some plants grow in spatial, which are very cold. Other plants grow in hot, dry deserts. Some plants grow in water, and some even grow underwater. In fact, the first plant on the earth were the water plants, which lived in the sea over 3 billion years ago. Plants जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में उगते हैं. कुछ बड़े होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं. और जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है वो कुछ 3,80,000 प्लांट्स हैं. कुछ प्लांट जो हैं वो लिव प्लांट्स मैनी डिफरेंट कंडीशंस पे रहते हैं. कुछ बहुत ठंडक में उगते हैं, कुछ बहुत गर्मी में, कुछ ड्राई डिजर्ट्स में, रेगिस्तान में होते हैं, और कुछ अंडर वाटर रहते हैं, कुछ ऊपर वाटर में रहते हैं. और जो फर्स्ट प्लांट था वो वाटर प्लांट ही था अर्थ पे, अपनी पृथ्वी पे, जो मतलब अंडर वाटर रहा था सी ओवर 3 ईयर्स. कितने 3 बिलियन ईयर, मतलब बिलियंस आप कैलकुलेट कर लो कितने साल, मतलब कौन से ईस्वी में जब स्टार्टिंग ही हुई होगी अपने अर्थ की, 3 बिलियन ईयर है को. ओके. Plants on land. Many plants grown on land the along the coast at sea level. It is much warmer than it being high up in the mountains. The soil at one place is not same as it is at another place. The weather at one place is also not same as at another place. It is for this reason that the plants you find at the one place are sometimes quite different from those found at another place. Plants that grow on land are called terrestrial plants. जो प्लांट लैंड पे ग्रो होते हैं, ज़मीन पे, उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. Plants of plains. These plants can bear heat and give shade in summer, but in winter they shed their leaves to protect themselves against the cold. Their stems are solid with the प्रोफ्यूज ब्रांचिंग. मतलब जो ये प्लांट्स के रहते हैं गर्मी में छाए देते हैं अपने को, बस विंटर में अपनी लीव्स को छुपा लेते हैं खुद को वो प्रोटेक्ट करने के लिए. जैसे आप देख लो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन प्लेन, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री. कम टू द नेक्स्ट पेज. Plants of cold climate. These plants are need very low temperature to grow. उनको बहुत low temperature चाहिए, बहुत कम temperature. जैसे pines, scoras, deodar and fir are the very common in the cold region. These trees have a needle-shaped leaves. They bear cones and not flowers, so that they can easily cut down the snow during a snowfall. They have a thick woody and straight stem. ये प्लांट्स क्या होता है, आपने क्रिसमस ट्री देखी होगी ना. क्रिसमस ट्री में नुकीली नुकीली पत्तियाँ रहती हैं, उनमें कोई फ्रूट्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, और ये ईजिली कट डाउन हो जाते हैं स्नोफॉल के दौरान. वुडी और स्ट्रेट होते हैं, जैसे आप देख रहे हो पाइनस, कोरस है, डियोडोर है. Plants in desert area. These plants are also called the xerophytes. The desert plants like a cactus, a prickle pear do not have a leaves. They store water food in their stems. और ये पानी, ये ना डेजर्ट प्लांट्स रहते हैं जो अपने पानी को स्टोर करते हैं अपने स्टेम्स के अंदर. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन डेजर्ट. सच प्लांट्स ग्रो इन इनफ ह्यूमिडिटी एंड नॉट शेड देम. कोकोनट एंड टी ट्रीज ग्रोस such plants grows in enough humidity and the temperature. These plants have a lot of leaves but they do not shade them. Coconut trees grow in hot and wet places. Rubber, sugar cane, pepper are other plants that grow on lower ground. मतलब कोकोनट और ब्रेक है वो कहाँ पे वो उगते हैं, हॉट में और वेट प्लेसेस में उगते हैं. मतलब दोनों गीले में और गर्मी में उगते हैं. वेट प्लेस मतलब गीली रहती है ज़मीन और गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी होती है जहाँ पे. जैसे आप देखोगे समुद्र तट पे वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं. रबर शुगर केन है ना, थोड़े नीचे उगते हैं, लोअर ग्राउंड में उगते हैं, लोअर ग्राउंड साइड. प्लांट्स ऑफ marshy areas. The plant that grown in stick and clay soil are called mangrove. They clay does not allow the root to breathe, so the roots grow above the ground. These roots can call breathing roots. जो है ना अंडर रूट प्लांट्स रहते हैं ना, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने शायद से नाम सुना हो. तो मर्शी एरिया रहता है जिसमें है ना पानी दलदल में रहते हैं, तो इनके रूट्स जो होते हैं बाहर रहते हैं, जिससे बाहर के रूट से ब्रीथिंग रहते हैं, क्योंकि जो अंदर के रूट रहता है उसको अलाउ नहीं करता उससे ब्रीथ लें, सांस लें ये लोग. एक्वेटिक प्लांट्स. प्लांट विच ग्रो इन वाटर
कॉल एक्वेटिक, दे आर 3 काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, दे आर फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर प्लांट। 3 टाइप्स के प्लांट रहते हैं, तो फ्लोटिंग रहते हैं जो तैरते हैं, फिक्स्ड रहते हैं बिल्कुल मतलब उसके अंदर फिक्स रहते हैं, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर के रहते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स दीज लाइक स्पंजी प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, दे आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर हाइसिन एंड द डकवीट। देखो ये आपने देखा होगा, ये नाले वाले में लगी रहती है, कहीं नदियों में रहते हैं, ऐसे ये फ्लाट रहते हैं, लिटिल स्पंजी होते हैं। These stem are reduced and roots are poorly developed. These leaves have a tiny waxy coating so that water may not wet the surface and block stomata. इनका वैक्सी रहता है, थोड़ा चिपचिपा सा रहता है इनका। फिक्स्ड प्लांट जो रहते हैं जैसे लोटस और वाटर लिली रहते हैं, दीज प्लांट्स हैव रूट्स एंड अलोंग द होलो स्टेम्स, these leaves are broad and float on the surface of the water. Some plants like the water lily and lotus are fixed plant, they breathe through the pores of the upper surface of the leaf. ये इनकी जो ऊपर की सतह होती है पत्ती की, उसमें जो नीचे की सतह तो पानी में रहती है, जो ऊपर की सतह रहती है पत्ती की, उससे ब्रीथ करते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स हैव नैरो लीव्स with no pores, they breathe through their body surface and help to keep the water clean. Pondweed and tape grass are the example of such type of plants. दिख रहा होगा आपको। अदर प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मोस डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, आपको पता है क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, और ये जब भी उगते हैं जहाँ कोई डेड प्लांट्स हो, डंप हो, कोई मरा हुआ जानवर हो कुछ, तो वहाँ पे उगते हैं। दे डू नॉट, दे आर नॉट ग्रीन लीव दे ऑन अदर प्लांट्स, और दे आर कॉल्ड पैरासाइट। सम प्लांट्स लाइक द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द पिक्चर प्लांट ट्रैप इनसाइड, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये मतलब वीनस फ्लाई ट्रैप है और ये पिक्चर प्लांट, ये ऐसा रहता है कि अपन को छूते हैं ना तो ये अपने आप को अपनी तरफ खींच से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इनको अपन ने छुआ तो ये अपना खा जाएंगे, कोई मक्खी वगैरह उड़ के आती है ना, ये जल्दी से उसको कैच करते हैं और उसको खा जाते हैं। यूजेस ऑफ ग्रास प्लांट, क्विलेस बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम। द फूड वी ईट बेसिकली कम्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली, दे आर कॉल्ड सीरियल ग्रीन। जैसे बार्ली प्लांट हो गया, राइस प्लांट हो गया, बाजरा प्लांट हो गया, बैम्बू प्लांट होते हैं। इसके अपन क्या होता है जिससे अपने खाना बनता है और जिससे अपनी चीज़ मतलब वो आते हैं, दाल वगैरह आती हैं, चावल वगैरह आता है, खाना मतलब रोटी वीट वगैरह आती है जिससे अपन खाना बनाते हैं। तो ये यूजेस ऑफ ग्रास प्लांट, ये ग्रास प्लांट के बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। ग्रास इज ऑल्सो यूज फॉर फूड फॉर एनिमल्स, ग्रास के उन लोगों के लिए भी यूज़फुल होती है, काउ शीप और हॉर्स के लिए, क्योंकि वो लोग इसको खाते हैं। बैम्बू इज यूज फॉर ग्रास प्लांट विच इज यूज टू मेक हट्स। बैम्बू जो होता है ग्रास प्लांट है, वो हट्स बनाने, बास्केट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और मैट्स बनाने के लिए। सम ग्रास प्लांट्स है मेडिसिनल वैल्यू, सब कुछ ग्रास प्लांट से मेडिसिन भी बनती है। कुछ ग्रास प्लांट पैकिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है, और कुछ ग्रास प्लांट कंजर्व ऑयल के लिए होता है। Wood power, terrestrial plants, plant that on land. Mangroves, trees with breathing root with grow in marshy areas. Aquatic plants, plant that live in water. Insectivorous, a plant that trap the insect to eat in it. आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, और उसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF के थ्रू शेयर कर दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।